What is कुंभ? क्या है कुंभ? तो अगर आप सनातन धर्म में देखोगे ना तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थ यात्रा। पाप पहले के किए हुए धुलेंगे कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ अ तीर्थ यात्रा। मेलाज ऑन द अदर हैंड आर मोर, जिसमें साधु संत भी आएंगे, आप भी आओगे। उन्होंने रामायण को घटित होते देखा। ही वॉज प्रेजेंट देयर। कि रामायण के 300 वर्जन है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अगर आप स्नान करो तो आप ही अमृतमय हो जाएंगे। संत महात्मा एकत्रित होते हैं, दे डिस्कस व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट, सोसाइटी को क्या आवश्यकता है। तो कुंभ मेला अलाउज दैट इज वेल। 4 जगहों पर कुंभ मेला होता है, उसमें भी प्रयाग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनहेरेंट डाइवर्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ सनातन, दैट इज व्हाट कुंभ रिप्रेजेंट्स। लोग किस भाव से आ रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि अगर सही इंटेंशन से ना भी आया हो ना, वो जाएगा तो सही इंटेंशन लेकर ही। पहले के पाप धुल जाते हैं ऐसा नहीं है। Hi and welcome. इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती to meet the famous author Ami Ganatra, who has written many books about Ramayana and Mahabharata. And I was in fact looking at meeting right people around Kumbh, and I happened to bump into her yesterday, and we started chatting, and we decided that we should do something here around Kumbh and talk about Kumbh a little bit and give you some insights, and that's why we are here. And the setting, I think, can't be any better. This is the Sangam, where everybody, like around 40 crore people, are coming here for. Ami, welcome and thank you for coming on this chit chat. Thank you so much. Namaste to all your viewers. And we, as he rightly said, we literally bumped into each other. ऐसा कोई plan नहीं था. We bumped into each other. In fact, I was told that there is a guy from Ukraine, and I look at him and I'm like, यार यूक्रेन का तो पक्के से नहीं है. But yeah, just because he was wearing a dhoti, one of the girls, young girls, she thought कि यार ऐसा कोई देसी तो नहीं कर सकता, तो ये कोई बाहर का ही होगा. But anyways, I don't know where she came up with Ukraine. But I don't know. So that's how our chat started. Okay, perfect. So first let's start with a little bit about your background and your journey so that everybody knows what exactly do you do. So if you can tell a little bit about yourself, that would be great. So I have been a management consultant for a large part of my life. 15 years I did management consulting. उसके पश्चात Krishna's will, I started writing about Mahabharata Ramayana. But the writing was more of a stroke of luck. I was always studying. मुझे बहुत सारे प्रश्न थे that what does it mean to be a Hindu? What is dharma? महाभारत रामायण के विषय में वैसे तो हम सब जानते हैं, परंतु उसमें जब ये कहते हैं कि धर्म क्या है, people have very different answers and there is a lot of fiction written around it. So I was very confused and I realized that अगर if I need answers for my prashnas, but for my questions, I need to go back to the text. So while I was working, I started learning Sanskrit and I started reading the texts for what they are. So that's how the journey began, and then one thing led to another, and now I have 3 books, 2 on Mahabharata, Mahabharata Unraveled 1, Mahabharata Unraveled 2, and Ramayana Unraveled, which have been translated, at least the first 2 have been translated into Hindi, Marathi, and Gujarati में translation चल रहा है. So before we jump into my second question, I'll talk a little bit about Ramayana because I have been confused about it. There are so many versions of Ramayana, right? I don't remember the exact number. You would be able to tell that. So they say कि रामायण के 300 versions है, 300. परंतु we should know that वाल्मीकि रामायण तो एक ही है. People have told, retold रामायण with their own भाव, with their own interpretations of it. वाल्मीकि रामायण जिसे हम इतिहास कहते हैं, तो हमारे जो the shastras that we have, जो scriptures that we have, उसमें we have different kinds of categorizations, जिसमें one category is इतिहास. इतिहास केवल 2 ग्रंथों को कहा गया है और उसमें है महाभारत, वेदव्यास रचित महाभारत और वाल्मीकि जी रचित रामायण. तो अगर आपको इतिहास जानना है, अगर आपको श्री राम के पर्सनालिटी को समझना है या बाकी भी सारे कैरेक्टर्स को ऐतिहासिक दृष्टि से समझना है, तो वाल्मीकि रामायण इज द गो टू टेक्स्ट. वाल्मीकि रामायण बहुत ही सुलभता से अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है. गीता प्रेस का है वाल्मीकि रामायण. इंग्लिश में विवेक देबरॉय जी है, उन्होंने ट्रांसलेशन किया है. ऑनलाइन वाल्मीकि रामायण.net करके एक वेबसाइट है. IIT कानपुर की एक वेबसाइट है जिसमें भी वाल्मीकि रामायण को संस्कृत और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उसके साथ दिया हुआ है. सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. बिल्कुल भी कठिन नहीं है वाल्मीकि रामायण पाना और उसे पढ़ना. इट इज आउट देयर. सो इफ यू वांट टू लुक एट वन सोर्स टेक्स्ट, क्योंकि हम जो कहते हैं कि देयर आर 300 वर्जन्स, पर उन 300 वर्जन्स में भी जो भाव से जो लेखक लिख रहे हैं, फिर वो तुलसीदास जी हो, कंब जी हो और भी कोई हो, वो सभी ही वाल्मीकि जी को नमन करते हैं. वो सभी ही ये मानते हैं कि जो
ओरिजिनल वक्ता है, जो ओरिजिनल रचयिता है वो वाल्मीकि जी है। और एक बात समझनी अत्यंत आवश्यक है, तो श्री राम जब थे तो उनके समकालीन वाल्मीकि जी एक ऐसे ऋषि थे who was with him, जो उनके समकालीन थे, जो उनके कंटेम्पररी थे, ठीक है। उन्होंने रामायण को घटित होते देखा, he was present there। बाकी सब लोग उसके पश्चात लिखते हैं, जब रामायण बहुत पहले हो चुकी है। जो उन्होंने वाल्मीकि जी से सुना है वही को वो आगे जो दोहराते हैं अपने अपने इंटरप्रिटेशंस, अपने कलर्स के साथ। इसलिए सोर्स टेक्स्ट तो वाल्मीकि रामायण है। So I was saying, why all these versions then? Like, देखिए भारत में ना कथा वाचन, कथा लेखन का हमेशा से ट्रेडिशन रहा है। हम लोग हमेशा से कथा बताते जाते हैं, नाट्य रचना होती है और उन नाट्य रचनाओं में भी पीपल टेक द क्रिएटिव लिबर्टी, अपने स्वयं के जो विचार हैं वो उसमें वो लोग मिलाते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं, रस पूर्वक प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए दिस इज ऑलवेज बीन द केस, है ना। और महाभारत और रामायण ऐसी कथाएं हैं जो सभी को जोड़ती हैं। भारत का के प्रत्येक मनुष्य को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो महाभारत रामायण से जुड़ा हुआ है। आज भी हमारे पूर्वजों की वो कथा हमें इतनी ही अपील करती है ना, इतनी ही आकर्षित करती है। तो सबको उससे जुड़ना है और सबको ऐसे लगता है कि उसके विषय में और भी कुछ कहे। तो आप अगर कालिदास भी देखें तो उन्होंने भी रामायण महाभारत की कथाओं को देखे उसका नाट्य रूपांतरण किया है। तो दैट हैज जस्ट बीन अ ट्रेडिशन, कथावाचन। परंतु जैसे मैंने फिर भी कहा कि कथाएं तो चलती रहती हैं। जैसे कोई भी आज भी कोई भी कथा हो उसको लोग फिक्शनलाइज करते हैं, बहुत सारे हिस्ट्री को फिक्शनलाइज किया जाता है अपने अपने इंटरप्रिटेशंस, विचारों के अनुसार, राइट। उसी प्रकार महाभारत रामायण के साथ हुआ है और मैं कहती हूँ कि अच्छा है ये ऐसी जो रचनाएं हैं वो और भी हों, लेट लॉट मोर क्रिएटिविटी हैपन। हाउएवर इफ़ यू वांट टू टेक द राइट लेसन्स, अगर आपको सही शिक्षा लेनी है इतिहास से, रामायण से, महाभारत से, अगर उसके ऐतिहासिक हिस्टोरिकली क्या हुआ वो जानना है, अगर उनके सारे पात्रों को, सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से समझना हो, देन यू हैव टू रीड वाल्मीकि रामायण एंड वेद व्यास जी महाभारत। तब आपको वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास जी का महाभारत ही पढ़ना होगा। so I have like at least 1,000 other questions about this, but we'll keep that for some other podcast and discussion. Abhi, let us jump into the core and the energy of where we are, the Mahakumbh. And honestly, it's been 3 days that I'm here और मुझे 3 दिन से अभी तक समझ में नहीं आया कि कुंभ है क्या। यहाँ पे हजारों लाखों लोग हैं और सबका अपना वर्जन है। So first question is, what is कुंभ? क्या है कुंभ? कुंभ मेला है। इट्स अ फेयर, इट्स अ महापर्व, इट्स अ सेलिब्रेशन। बट सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट? तो अगर आप सनातन धर्म में देखोगे ना तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा मतलब क्या? जैसे हम इंग्लिश में कहो तो पिलग्रिमेज कहते हैं। हमारी जो पिलग्रिमेजेस होती हैं उनका दे आर ऑलवेज समवेयर, कहीं तो नदी के पास, कोई तो वाटर बॉडी के पास, या तो कहीं पर्वत पर, है ना। वो सारे बहुत ही आर्डियस जर्नीज होते थे, बहुत ही तकलीफ लेनी पड़ती थी, आपको चलना होता था, सब खुद का काम स्वयं से करना होता था, खाना स्वयं से बनाओगे, जो सहूलियतें मिलेंगी उसमें आप काम चला लोगे। और कहाँ ऐसे जाता है कि अगर आप तीर्थ यात्रा करते हो या कहीं नदी में डुबकी लगाते हो, दर्शन करते हो उस क्षेत्र में जाके, तो आपके पाप धुल जाते हैं, आपको पुण्य मिलता है, ऐसे कहा जाता है। पाप धुलना, पुण्य मिलना, ये तो एक मान्यता है। परंतु जिस प्रकार की वो यात्रा हुआ करती थी उससे क्या होता है ना, आप देखो, जब वी आर यूज्ड टू, हमें हमारे जीवन को एक पर्टिकुलर तरीके से जीने की आदत होती है, राइट। हमें लगता है यार इसके बिना तो मैं चला ही नहीं सकता, आई वॉन्ट माई बेड ओनली, आई वॉन्ट माई पिलो ओनली। हम कहते हैं कि मुझे तो मेरे ही रूम में, मुझे तो और कहीं नींद भी नहीं आती, ये तो मुझे ऐसा ही खाना चाहिए, वैसा तो मैं खा ही नहीं सकता, ये नहीं होगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं, वगैरह वगैरह, राइट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है यार इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। पर जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उन सब से अट्रैक्शन छोड़ के जाते थे, उन सब से डिटैच होके जाते थे, तो ही आप जा पाओगे, राइट। उसके बिना तो होगा नहीं। टू द एक्सटेंट कि पहले तो ऐसे होता था कि कोई अगर तीर्थ यात्रा पे जा रहा है तो गांव वाले सब आ जाएंगे और उनको बाय बाय बोलने आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे था कि वापस आओगे कि नहीं ये भी नहीं पता होता था। मतलब आप वो डिटैचमेंट का लेवल देखो, आप अपने जीवन से भी आकर्षण छोड़ के जा रहे हो, अट्रैक्शन, वो जो अटैचमेंट है वो छोड़ के जा रहे हो कि यू डोंट नो इफ यू आर कमिंग बैक। दैट सेंस ऑफ डिटैचमेंट यू स्टार्ट डेवलपिंग। When you start developing a sense of detachment, what you also realize, अब ज़रूरी नहीं है कि सब मर ही जाए, है ना, लोग वापस भी आते थे। But when you come back after a trip like this, what happens? कोविड में क्या हुआ, राइट? हम सबका लाइफ came to a standstill, अचानक से सब कुछ बदल गया। We had to reprioritize, हमें लगता था ऐसे तो हम जी नहीं पाएंगे। Things change, उसमें तो हमको ज़बरदस्ती करना पड़ा। ये यात्राएं तो हम voluntarily करते हैं, है ना। तो जब आप जाते हो तो आपका एक दृष्टिकोण निर्माण होता है। You start realizing that
यार लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो मुझे जीवन में लगता था कि इसके बिना रहा नहीं जाता, ऐसा नहीं है. यू स्टार्ट वैल्यूइंग थिंग्स व्हिच रियली मैटर, है ना. यू रीप्रायोरिटाइज योर एंटायर लाइफ. पाप पहले के किए हुए धुलेंगे कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती, परंतु आगे तो एटलीस्ट आपका पर्सनालिटी तो वैसे होगा कि आगे आप वैसे काम ना करो जो आपको नहीं करने चाहिए. बिकॉज अधिकतर हम जो कहते हैं पाप किया मतलब क्या, हम क्यों ऐसी चीजें करते हैं क्यों हमें नहीं करनी चाहिए. बिकॉज लाइफ की प्रायोरिटीज गलत है ना. हमेशा हम मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे वैसे नहीं कह दिया. वो हम जो कहते हैं षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, एंगर, अटैचमेंट, डेल्यूजन, ग्रीड, जेलसी, इसी से हम कोई भी निर्णय लेते होते हैं. पर जब वो थोड़ा सा सेंस ऑफ डिटैचमेंट आता है ना कि यार व्हाट मैटर्स एंड व्हाट नॉट, ये सारे जो हमारे वृत्तियां हैं उन पर भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ अ तीर्थ यात्रा, टू डेवलप दैट सेंस ऑफ अटैचमेंट. अच्छा, दूसरा क्या होता था तीर्थ यात्रा में कि आप कहीं जाते हो, वहाँ पे जो ऋषि मुनि है, जो साधु संत है, उनसे मिलते हो, उनके साथ वार्तालाप होता है, उनके साथ थोड़े दिन गुजारते हो, तो वो से जो ज्ञान है वो भी आप तक आता है, जो भी आपको आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दृष्टिकोण डेवलपमेंट उसमें मदद करता है. तीर्थ यात्रा द जर्नीज व्हिच आर मेड दैट वे. मेलाज ऑन द अदर हैंड आर मोर, जिसमें तीर्थ यात्रा इज एन इंडिविजुअल एफर्ट. मेले में क्या होता है, मास इकट्ठा होता है. आप सबको मालूम है कि इन तिथि पे यहाँ आना है, साधु संत भी आएंगे, आप भी आओगे, पर्टिकुलर पद्धति से रहोगे, कुछ टाइम सत्संग होगा, कुछ सीखोगे और चले जाओगे. दिस इज द पर्पस ऑफ अ यूजुअल मेला. कुंभ मेला इज नॉट द ओनली मेला. इनफैक्ट प्रयाग में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हर वर्ष माघ मेला होता है. माघ मतलब यही समय, माघ के महीने में हर वर्ष मेला होता है. पर कुंभ स्पेशल है. कुंभ क्यों स्पेशल है, उसके दो कारण हैं. एक तो कुंभ से रिलेटेड एक पौराणिक कथा है, समुद्र मंथन से रिलेटेड. तो ऐसा कहा जाता है कि देव और असुर, उन दोनों को ही अमृत चाहिए. अब अमृत कहाँ से मिले, तो वो जाते हैं विष्णु जी के पास, और विष्णु जी कहते हैं कि आपको समुद्र मंथन करना होगा. तो मंथन दोनों को मिलकर करना होगा, अकेले तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको यूनाइटेड होकर करना पड़ेगा. तो वो मान जाते हैं. अब मंथन कैसे करो, तो पहले आपको एक वो स्टिक चाहिए. स्टिक क्या होगा, तो मंदराचल पर्वत को वो लेते हैं वो चर्निंग स्टिक के लिए. पर वो इतना बड़ा पर्वत को बेस तो कुछ होना चाहिए. तभी विष्णु जो है वो कूर्म रूप धारण करते हैं, जो टॉर्टोइस वाला, टर्टल वाला, कछुआ वाला हम जो कहते हैं. अब आपको चाहिए डोरी चर्न करने के लिए, है ना. जब आप छाछ बनाते हो, बटर मिल्क बनाते हो, तो वो आप कैसे करो, तो उसके लिए शिवजी का जो नाग है वासुकी, वो तैयार हो जाता है. तो वो रस्सी बनता है और देव और असुरों का जो चर्निंग है, समुद्र मंथन, वो शुरू हो जाता है. अब बहुत सारी चीजें निकलती हैं समुद्र मंथन से. कामधेनु गाय, ऐरावत जो हाथी है, उच्चैश्रवा जो घोड़ा है, कल्प वृक्ष निकलता है, पारिजात का पेड़ निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती है. विष निकलता है जो निकलता है. ये सब ना मेटाफोरिकल होता है कि जब आपके अंदर भी, मन में भी जब मंथन शुरू हो ना किसी भी बात का, तब सब अच्छा ही निकले, ऐसा नहीं है. इसीलिए जब मेडिटेशन भी करते हैं तो वो कहते हैं ध्यान रखो. कई बार ऐसी बातें आती हैं जो कदाचित आप फेस भी ना करना चाहो, इसीलिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते भी नहीं है, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू फेस इट, राइट. पर वो आता है, यू हैव टू लेट इट कम टू यू. जब वो जाएगा तभी तो अच्छा आएगा, है ना. तो वो भी आता है, तो विष भी आता है, पर विष किसी को नहीं चाहिए. तो अब कैसे करो, कौन हैंडल कर पाएगा विष. तो शिवजी आते हैं. शिवजी हम जानते हैं वो कथा कि वो विष को गले में लगाते हैं, पर वो विष क्योंकि नीला है इसलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया. फिर धन्वंतरी और फिर लक्ष्मी जी आती हैं. लक्ष्मी जी विष्णु जी का वरण कर लेती हैं उनके पति के तौर पे. फिर अमृत के घड़े के साथ, अमृत के कुंभ के साथ धन्वंतरी आते हैं. धन्वंतरी को हम देवताओं का डॉक्टर भी कहते हैं, ठीक है. तो धन्वंतरी अमृत लेके आते हैं. एफर्ट तो दोनों साइड ने किया है, देवों ने भी किया है, असुरों ने भी किया है. पर अगर असुरों को अमृत मिल जाता है तो क्या होगा. असुर क्या करना चाहते हैं, असुर जो है वो ये विश्व का बैलेंस हमेशा ऊपर नीचे करना चाहते हैं. आप अगर देखो ना तो कोई भी देवासुर संग्राम की कथा होगी, उसमें क्या कहेंगे कि असुरों ने देवों के सारे कामकाज ले लिए, स्वर्गलोक पर हथिया लिया, और उसके कारण क्या होगा, नदियों ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, आंधी आने लगी, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, है ना, तबाही मचने लगी. तो यू डोंट वांट दैट, यू वांट टू मेंटेन एन ऑर्डर. वो chaos नहीं चाहिए आपको, ऑर्डर रखना है, वो रिदम रखना है, जिसके कारण संसार चलता रहे, संसार चक्र चलता रहे, प्रकृति चलती रहे, जो जैसा होना चाहिए वो होता रहे, राइट. इसीलिए देवों का होना जरूरी है. और अगर आप पहले के हमारे देव देखें तो इंद्र, वरुण, रुद्र, ये वायु, अग्नि, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति के देवता है. एलिमेंट्स, करेक्ट, ये सब एलिमेंट्स के देवता है. स्वर्ग का कामकाज, पृथ्वी या विश्व का कामकाज उनके हाथों में रहे, महत्वपूर्ण है. असुर अगर उनको अमृत मिल गया, अगर वो अमर हो गए तो तबाही मच जाएगी. तो अब कैसे करो,
तो फिर से विष्णु जी आते हैं, विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करते हैं, घड़ा लेते हैं और कहते हैं कि आप देव इस लाइन में खड़े हो जाओ, असुर इस लाइन में खड़े हो जाओ। एंड दैट मोहिनी रूप वो इतने सुंदर और इतने मोहक है मोहिनी रूप में कि दोनों देव और असुर पूर्णतः ऐसे वो फिदा हो गए, वो दे आर स्मिटन बाय मोहिनी। इसलिए देवता भी लाइन में खड़े हो गए और असुर को भी लग रहा है हाँ हाँ वो कह रही है वैसे करते हैं। तो मोहिनी धीरे 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 सबको अमृत पिला रही है। तब हम वो जानते हैं कि फिर राहु जो असुर था वो आ गया, फिर वो राहु कट गया। तो वी हैव ऑल दैट स्टोरीज। एनीवेज फिर असुरों को समझ आ जाता है तो देवासुरों के बीच वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो देव जो है वो अमृत का घड़ा लेके भागते हैं। जब वो भागते हैं तो पृथ्वी पे 4 जगहों पर अमृत की बूंदें पड़ती है। उन 4 जगहों पर जहाँ अमृत की बूंदें पड़ती है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अगर आप स्नान करो तो आप भी अमृतमय हो जाएंगे। ठीक है, वो 4 जगह कौन सी? तो प्रयाग का जो संगम है पानी, ठीक है, गंगा और यमुना जी और गुप्त सरस्वती का जो संगम है वो, हरिद्वार में गंगा जी, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा, वहाँ पर वो बूंदें गिरी, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेला, एक भव्य मेले का आयोजन होता है 12 वर्ष में एक बार। अब ये 12 वर्ष में एक बार क्यों? क्योंकि हमारे जो सारे ये मेले या पर्व या फेस्टिवल्स, आप जो भी कुछ कहो ना, दे आर ऑल बेस्ड ऑन कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशंस, प्लैनेटरी मोशंस, उस पे बेस्ड है और सीजन्स उसके द्वारा निर्णय की जाती है। कुंभ का ये है कि जुपिटर जब ऋषभ राशि में हो, टॉरस में हो, तब उस समय प्रयाग में कुंभ होता है। ठीक है, वो जब कुंभ में हो, बृहस्पति जब कुंभ में हो तब हरिद्वार में होता है और ऐसे बाकी दोनों का है। अब 12 वर्ष में एक बार क्यों? क्योंकि जुपिटर टेक्स 12 years टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द सन। तो हर एक राशि में वो 12 वर्ष में एक ही बार आता है। ठीक है, तो इसीलिए कुंभ भी, पूर्ण कुंभ भी 12 वर्ष में एक ही बार आता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट और द मोशन ऑफ द जुपिटर। जुपिटर, सन, मून, बट मेनली जुपिटर इज द वन दैट डिसाइड्स। ये तो पौराणिक स्टोरी हो गई और ये हो गया कि क्यों 12 वर्ष में एक बार होता है। पर इसका एक और महत्व है। एक तो है कि तीर्थ है जो मैंने आपको बताया है ना, और इसीलिए यहाँ पे आके स्नान करना। और ऐसे कहा जाता है कि जब बृहस्पति और सन और मून का वो पोजिशंस होता है अलग अलग नक्षत्रों में, दैट मेक्स द वाटर इवन मोर पोटेंट। बिकॉज ऐसे तो हम मानते ही है ना वैसे भी कि सूरज, चंद्रमा, उन सब का पानी पे, हमारे शरीर पे, साइकोलॉजी पे भी असर है, ये तो कहा ही जाता है। तो दैट इम्पैक्ट ऑल्सो हैपेंस। परंतु एक और बात भी है, ये जो कुंभ मेले का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है कि हाँ ये भर 12 साल में होगा, सारे संत महात्मा आएंगे, ये कहा जाता है कि ये आदि शंकराचार्य ने किया। मेले तो उसके पहले से हो रहा है। इनफैक्ट 6th-7th सेंचुरी में ह्यून ज़ैंग नामक एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने प्रयाग में मेले की बात कही है जो हर वर्ष होता था। और हर 5 वर्ष में, 5 या 6 वर्ष में, हर्षवर्धन जो कनौज के वो राजा हुआ करते थे, वो धर्म सभा करते थे। धर्म सभा मतलब क्या कि सारे साधु संत आएंगे और वो बहुत दान धर्मादा करेंगे, सत्संग होगा, ये सब। जो राजा है वो दान धर्मादा करेगा, सत्संग होगा, लोग आएंगे, इस प्रकार से। परंतु जो हम जानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने एक समय पे, जब ये आक्रांताओं का मार शुरू हो गया भारत पे, व्हेन इन्वेडर्स स्टार्टेड कमिंग, तो उन्होंने जो मोनास्टिक ऑर्डर्स हैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू किया और उन्होंने 13 अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़ा वैसे देखा जाए तो हम जो बॉक्सिंग रिंग की बात करते हैं, कुश्ती जहाँ करते हैं, वो सब है, वो मल्ल युद्ध जहाँ होता है। तो ये क्यों? क्योंकि जो साधु उसमें जुड़ेंगे उनको शस्त्रों की भी तालीम दी जाती है, उनको शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती है। क्यों? शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाए जाते हैं ताकि धर्म की, हिंदू समाज की रक्षा हो। इनफैक्ट वो जो 13 अखाड़ों में, जिसमें नागा साधु कहते हैं हम, उन्होंने जब इस्लामिक इन्वेजन, टर्किक इन्वेजन शुरू हुए, तब कितनी सारी बार राजाओं के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया है। देयर आर स्टोरीज अराउंड दैट, देयर आर एविडेंसेस फॉर इट दैट उन्होंने भाग लिया हुआ है। फॉर सो मेनी इयर्स दे हैव डन दैट। आज तो वी हैव आर्मी, सो वी डोंट नीड इट, बट दैट यूज्ड टू बी। अब ये जो सारे साधु थे, जो मंक्स हुआ करते थे, जो सन्यास ले लेते, सन्यासी जो बन चुके वो उन अखाड़ों में, वो उनकी जो साधना है वो तो कहीं हिमालय में, गुफाओं में, पर्वतों में, जंगलों में चलती रहती है। उसमें बहुत सारे ऐसे जिनको नागा साधु कहा जाता है, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते और ठंडी गर्मी जो भी कुछ हो वो अपनी साधना करते रहते हैं। पर
वो सब एकत्रित कैसे हो, उनके बीच भी वाद संवाद कैसे हो, इतने सारे साधुओं के बीच भी, राइट, ये अखाड़ों के जो हेड्स हैं उनके बीच भी कैसे वाद संवाद हो। तो ये सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया कि एटलीस्ट once in 12 years they all come together. Now once in 12 years in one place, right? But in 12 years 4 places. पहले अर्धकुंभ का इतना महत्व नहीं होता था, अब तो अर्धकुंभ भी बहुत बड़ा करने लगे हैं हम तो अब तो। और ये सब जो बात बता रही हूँ मैं हिस्ट्री की बात बता रही हूँ, अब तो बहुत ही और अलग रूप में मेले हो गए हैं। बट द आइडिया वाज दैट दे ऑल कम टुगेदर संवाद के लिए, सत्संग के लिए। दे वुड कम टुगेदर एंड टेक अ लॉट ऑफ रेजोल्यूशंस कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वन ऑफ द कुंभ मेलाज आई थिंक 1906 या कभी तो जो बनारस में हिंदू जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना करनी है, उसका कॉल भी वहाँ लिया गया। राम मंदिर का है वो भी कॉल वहाँ लिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें सारे संत महात्मा एकत्रित होते हैं। दे डिस्कस व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट, सोसाइटी को क्या आवश्यकता है। सो कुंभ मेला अलाउज दैट एज वेल। अभी जो हम कुंभ में आए हैं तो हम वो सेक्टर 18-19 अगर आपने देखा होगा, वहाँ बहुत सारे अखाड़े हैं, एक्चुअली हर जगह अखाड़े हैं, बट जो 13 मेन अखाड़े हैं जिसमें 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं, 3 उदासीन सिख अखाड़े जो हैं वो सब वहाँ पर है। और स्पेशली शैव अखाड़ों में नागा साधु, सब जगह नागा साधु होते हैं, बट जो प्रॉपर लोग देखने आते हैं ना वो उनमें होते हैं। उसमें भी खास करके जूना अखाड़े में आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो वो सब यहाँ पर है। दे डू देयर जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो सिद्धियाँ हैं वो दिखाते हैं, पर साथ साथ लोगों के साथ संवाद भी करते हैं। इनफैक्ट कल ही आचार्य सभा होने वाली है, जहाँ ये अखाड़े वाले जो महामंडलेश्वर जो ऋषि हैं, वो जो मुनि जो साधु हैं वो तो है ही है, पर जो नॉन अखाड़ा वाले संप्रदाय है, चिन्मय मिशन हो गया, RK मिशन हो गया, आप देखिए कितने सारे हैं ना। बिकॉज भारत ऋषियों की भूमि रही है, भारत गुरुओं की भूमि रही है। कितने सारे संप्रदाय हमारे यहाँ ऑलरेडी है। उन संप्रदायों को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, उनके आचार्य गण यहाँ पर आए हैं, वो सभी लोग यहाँ पर है। VHP यहाँ पर है, उन सबका लगा हुआ है। जो गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ का जो मठ है उसका भी यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है ना। तो ऐसे कितने ही सारे हैं। राम भद्राचार्य जी हैं वो यहाँ पर है, जो परमार्थ निकेतन है ऋषिकेश में वो यहाँ पर है, वो सब लोग यहाँ पर है। उन सब की भी आचार्य सभा होगी जिसमें हम सुन भी सकते हैं, बट इन जो उनका प्राइवेट में भी सेशंस होता है वेयर दे टेक अप वेरियस रेजोल्यूशंस, दे डिस्कस थिंग्स दैट मैटर। तो वो यहाँ पर भी हो रहा है। पर आज जो आप देख रहे हो बहुत सारे लोग संगम में डुबकी लगाने आते हैं। इनफैक्ट आप देखिए अभी भी इतनी शाम हो गई है और लोग तो है ही, जहाँ लोग भीड़ तो कमी नहीं हुई है, तो फिर भी हमने स्थान ऐसा चूज किया है जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है, बट लोग आ ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। एंड नाउ विद द इंफ्रास्ट्रक्चर बिकमिंग सो मच बेटर, दिस विल ओनली कंटिन्यू। सॉरी अ लॉन्ग आंसर। वैसे अखाड़ों में अभी तक आई यूज्ड टू वंडर व्हाई दीज आर कॉल्ड अखाड़ास, लाइक डिफरेंट अखाड़ास, व्हाई अखाड़ास। तो या दैट क्वेश्चन यू आंसर्ड and many more questions you answered which I had in my list already. So now I have to put in my voiceover that this is the question. हाँ, actually you can break it up, वो सही रहेगा सुनने वालों के लिए भी। But anyway, so one question around this is like the importance of, because ये वाला जो हो रहा है ये 144 साल बाद हो रहा है, तो उसकी क्या महत्व है? तो अच्छा, उसके पहले एक बात जो मैं बताना भूल गई इज दैट अभी हम प्रयाग में हैं और 4 जगहों पर कुंभ मेला होता है। उसमें भी प्रयाग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वाई? बिकॉज प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। वाई? कारण यहाँ पर गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती जो कहते हैं उनका संगम होता है। संगम आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सनातन धर्म, और स्पेशली वहाँ डुबकी लगाना। और यहाँ पे जो तीनों महान हमारी नदियाँ हैं जहाँ पे सिविलाइजेशंस बने हैं, है ना, रहे हैं, उनका संगम यहाँ हो रहा है। इसलिए प्रयाग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। आपको और एक बात प्रयाग के बारे में बताती हूँ। उसे तीर्थराज जो कहा जाता है बिकॉज प्रयाग, याग मतलब संगम, बट याग ऑल्सो मीन्स यज्ञ जो हम करते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि की रचना के लिए जो एक महान यज्ञ किया था वो यहाँ पर किया था, ऐसी मान्यता है। ठीक है, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि प्रजापति ने Okay, so after a glitch, the light is back and नदी और संगम वापस चमक उठाए, and I guess so are we. So we can continue the conversation. She was telling us about the meaning of Prayag. हाँ, तो एक तो मैंने कहा या प्रयाग जो है एक तो संगम से रिलेटेड है, पर जो दूसरा है वो है याग मतलब यज्ञ। तो जब
सृष्टि की रचना हुई, तो ऐसे हमारी मान्यता है। जो आप देखोगे तो ये जो चौथा चैप्टर इन भगवत गीता, इट ऑल्सो सेज कि सह यज्ञेन, प्रजापति ने यज्ञ के साथ सृष्टि की रचना की। गीता में कहाँ नहीं लिखा, पर यहाँ की मान्यता ऐसी है कि वो जो यज्ञ प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने करा, वो इस भूमि पे करा है जहाँ आप और हम बैठे हैं। तो ये भी एक अर्थ है प्रयाग का, जहाँ पर वो विशिष्ट यज्ञ जो है वो किया गया, जहाँ से सृष्टि की रचना हुई। तो ये मैं प्रयाग की बात बता रही थी। और मैं प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा, जो हमने कहा क्योंकि यहाँ संगम है। ऐसी मान्यता है कि भारत में बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं और हर तीर्थ क्षेत्र का अपना महात्म्य है, वहाँ से पुण्य अर्जित होता है। परंतु आप और कहीं ना जाओ और केवल प्रयाग में आकर संगम में डुबकी लगाओ, संगम स्नान करो, तो उससे आपको उन सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। ऐसी भी मान्यता है। नाइस, परफेक्ट। मैं तो आते ही किया था। मेरी भी 2 बार तो हो गई, अभी और शायद 2 बार लगाने का अवसर मिल जाए। बट देन 144 इयर्स का सिग्निफिकेंस। 144 इयर्स का सिग्निफिकेंस। तो 144 इयर्स का सिग्निफिकेंस जो मैंने सुना है वो 2 प्रकार से है। एक तो ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि कुंभ वर्ष में 12 वर्ष में एक बार आता है। महाकुंभ जब वो 12 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं 144 इयर्स में, तब वो जो 12th साइकिल जो है उसे महाकुंभ कहा जाता है। और उस महाकुंभ के बाद वापस जो है वो काउंटर शुरू होता है। दूसरी बात जो कहते हैं कि वो तो हम जानते हैं कि जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति का एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन होता है तब कुंभ मेला किया जाता है। पर उसके साथ साथ 12 वर्षों का ये भी है कि कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन, अभी एग्जैक्टली क्या वो सब अलग अलग कह रहे हैं, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली श्योर। व्हाट आई गो विद इज द 12 ईयर साइकिल्स, 12 साइकिल्स ऑफ 12 ईयर्स, दैट मेक्स इट 144 ईयर एंड दैट इज द बिगेस्ट वन दैट हैपेंस। सो 144 ईयर्स में वो 12 साइकिल्स कंप्लीट होता है जो महाकुंभ हो जाता है। सो अर्धकुंभ जो 6 वर्ष में होता है, पूर्ण कुंभ जो 12 वर्षों में होता है, और महाकुंभ जो 12 पूर्ण कुंभ का जो होता है, दैट इज द महाकुंभ। Awesome. So my first kumbh is Mahakumbh. You started with Mahakumbh. Mahakumbh is literally one of those once in a lifetime things. Yeah, because it will now come after 144 years. जब हम तो नहीं रहेंगे। Like maybe 2 generations down the line. अगर वापस जनरेशन मनुष्य अवतार में हुआ तो हाँ। Or maybe after the Dubki we get the Mukti, so वो भी हो सकता है, वो तो बात करते ही हैं कि मुक्ति मिलती है जी। So एक क्वेश्चन मेरे मन में था, so we were just पहले you were telling about you know the value of elements and all these things, right? So I spent a lot of time across India tribes के साथ, जो अभी तो बहुत सारी tribes अपना indigenous culture follow नहीं करती हैं because of their migration, religious conversions, multiple aspects and lack of transfer of knowledge. That is also a very big thing. क्योंकि उनके पास रिटन स्क्रिप्ट्स नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है दैट पूरी उनकी इंडिजिनस कल्चर हैज़ बीन लॉस्ट। बट जहाँ पे भी थोड़ा बहुत बचा है वहाँ पे मैंने यही देखा है कि वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स जो हम बात करते हैं वो भी वही बात करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। क्या डू यू सी द सिमिलैरिटी, क्या है? हर एक इंडिजिनस कल्चर और जो सनातन धर्म है ना, उसको भी मैं इंडिजिनस कल्चर कहूँगी, जो नेटिव कल्चर है। हिंदू धर्म ना एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं। दे हैव अ प्रॉफिट, दे विल हैव अ बुक, they will have the do's and don'ts according to what the book and the prophet reveals to them, ठीक है। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा नेटिव इंडिजिनस कल्चर है, जैसे मैक्सिको में होता था, जैसे साउथ अमेरिका में होता था, जैसे इजिप्ट में होता था, जैसे ग्रीस में होता था, जैसे रोम में होता था, बिफोर द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स केम, राइट। जिसे जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स वाले हैं वो पेगन कहते हैं। ये सारे ही रिलीजन्स जो है ना, ये सभी में एलिमेंट्स की पूजा होती है, जो पंच तत्वों की पूजा है वो होती है। उनके सभी के जो देवता है उनका कुछ ना कुछ प्रकृति से संबंध होता है। और अगर आप सोचो ना तो इट जस्ट मेक्स सो मच लॉजिकल सेंस, क्योंकि जब पहले तो हम जो कहते हैं कि हंटर गैदरर्स मनुष्य हुआ करते थे, समाज बनने लगा, सोसाइटी ऑर्गेनाइज होने लगी, वो लोग ग्रुप्स में रहने लगे, फायर की शोध हुई है ना, फायर अग्नि की शोध हुई, उससे उनको पता चला कि अच्छा आप खाना ऐसे भी बना सकते हैं, आपको केवल कच्चा खाना है ऐसा नहीं है। व्हील्स की शोध हुई, वो सब होने लगा धीरे धीरे धीरे। फिर अब जब समाज बन जाता है तब आपका समाज कितना स्टेबल है कितना नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है। आपको खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, आप एक जगह पे रह रहे हो कि नहीं, आप सुरक्षित हो कि नहीं। अब ये सभी एलिमेंट्स, अगर ये सभी फैक्टर्स आप देखो,
तो खाना सही से मिल रहा है कि नहीं, आप सुरक्षित हो कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? वहाँ का वेदर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, राइट? खाना उगता है कि नहीं उगता है, खाना कैसे उगेगा, बारिश आती है कि नहीं आती है, राइट? जब बारिश आती है तो खाना उगता है, खाना उगता है तो नरिशमेंट होती है। व्हेन यू आर नरिश्ड यू कैन डू अदर थिंग्स इन लाइफ, राइट? तभी आप और इनोवेशंस करते हो और इन्वेंशंस करते हो। दैट कीप्स यू टुगेदर, दैट मेक्स अ सॉर्ट ऑफ, इवन इफ अ वेरी सिंपल इकोनॉमी कम्स इनटू शेप। अगर वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि आप स्थायी रह के रह सको, यू डोंट हैव टू कीप रोमिंग अराउंड, राइट? तभी आपको आपका सिविलाइजेशन डेवलप होगा। इफ़ यू हैव टू कीप रोमिंग अराउंड कि थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन वहाँ, तो तभी भी सिविलाइजेशन नहीं, वो नोमैडिक कल्चर हो जाएगा। सिविलाइजेशन कब होता है? व्हेन ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर कंड्यूसिव टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ दैट सिविलाइजेशन, राइट? मनुष्यों को ये रियलाइज हुआ कि अगर वो हमारे पर प्रसन्न नहीं होंगे, ये सारे एलिमेंट्स, प्रकृति हमारे पर प्रसन्न नहीं होगी, तो हम जी नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली, राइट? आज भी अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो विनाश हो जाता है, आज भी थोड़ा भी कुछ बारिश अधिक आ जाती है तो विनाश हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस दैट वी हैव डन। सो नेचर कंटिन्यूज टू बी इम्पॉर्टेंट, और उस समय तो और भी ज़्यादा। टुडे वी स्टिल हैव स्ट्रक्चर्स, टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस थोड़ा बहुत नेचर पर, नेचर को कंट्रोल करने के लिए, नेचर को कंट्रोल करने के लिए नहीं, अपने को ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए, ठीक है? तब तो ऐसा नहीं था। तो ऑल दीज कल्चर्स रियलाइज दैट यू हैव टू लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द नेचर। मीन्स व्हाट? कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो ये नहीं हो सकता कि ये नेचर जो है मैं उस पर रूल करूँगा, नहीं। आपका ये होना चाहिए कि भाई प्रकृति आपसे, हमें ये सारे तत्व मिल रहे हैं, सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें। सो इट इज़ अ नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड। कैसे हुआ ये? तो आप देखो उन सभी कल्चर्स में कहीं ना कहीं नदी की पूजा होगी, पर्वत की पूजा होगी, झाड़ पेड़ की पूजा होगी, जंगल की पूजा होगी, जो इम्पोर्टेंट आपके प्राणी हैं, जैसे हमारे में गाय की पूजा, बिकॉज ये सब हमारे समाज के लिए, हमारे अर्थशास्त्र के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक थे। इनफैक्ट गीता में एक बहुत सुंदर वो श्लोक आता है, देवान भावयतु अनेन यह देवा भावयन्तु वह, कि ये जो देव है उनको हम प्रसन्न करते हैं। जो हमारा जो यज्ञ का जो एस्पेक्ट है ना, जो मैंने अभी कहा कि यज्ञ करके प्रकृति की रचना हुई, यज्ञ का क्या एस्पेक्ट है कि आप देवताओं को बुलाते हो, उनको कुछ हविष, उनको कुछ अर्पण करते हो, है ना? कुछ भी हो, फिर उसमें अन्न धान्य हो गया, अगर आपका नई फसल पकी है तो वो हो गया, घी हो गया, जो भी कुछ हम कहते हैं हम आपको अर्पण करते हैं, आप हमें प्रसन्न रखिए, और जो बचता है वो हम खाते हैं, है ना? तो इट्स अ गिव एंड टेक, very clearly understood. These are first principles. This is first principles thinking. You see, इसीलिए you will see this in all indigenous cultures. Unfortunately, we are probably the only one who have survived this way. Probably because भारत की जो भूमि है वो हमेशा से इतनी उपजाऊ रही है, और इतना बड़ा सिविलाइजेशन हो चुका है, इतने लोग हो चुके हैं कि इवन व्हेन ये जो प्रोसेलिटाइजिंग जो थॉट्स अब्राहमिक रिलीजन्स आए, फिर भी वो पूर्णतः हमें कन्वर्ट नहीं कर पाए, है ना? और हमारा वो जो प्रकृति से जो जुड़ाव है, वो जो भाव है देवताओं के साथ, वो बनता रहा। ऑफ कोर्स हमारे में भी एवोल्यूशन हुआ, है ना? वेदों के समय तो ये प्रकृति देवता ही थे, फिर पौराणिक समय आते आते हम ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी स्तुति करने लगे, इनको ज़्यादा महत्व देने लगे, तो वो तो हमारे में भी बदलाव आया है, बट द कोर इज स्टिल द सेम, जो हमने प्रिजर्व करके रखा है, बाकी सारा कन्वर्जेंस के कारण चला गया है। इसमें भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक बिकॉज मुझे ट्राइब्स की स्टोरीज अनकवर करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मेनली फॉर द रीजन कि वो खत्म होती जा रही हैं, एंड द सेकंड बिगेस्ट रीजन इज दैट दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो अर्दी रूटेड स्टोरीज हैं जो खत्म हो रही हैं। हर चीज़ की स्टोरी होती है, घास की स्टोरी, ग्रास हॉपर की स्टोरी, चिड़िया की स्टोरी, चिड़िया के गाने, मतलब इट्स ब्यूटीफुल। व्हाट द मोर आई एक्सप्लोर द मोर beauty, and that's why I want to try and preserve whatever drops I can. Beautiful, great effort, तुम बहुत अच्छा काम कर। So I want to do maybe a separate discussion on this about tribes and Sanatan Dharma, क्योंकि कई लोग offend भी हो जाते हैं when I कभी-कभी एक वीडियो में मैं compare कर देता हूँ, तो obviously people sometimes they take offense. But अच्छा, let me tell you one more thing. आज ये सारे जैसे लुप्त होते जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना, और स्पेशली जो तुम नॉर्थ ईस्ट में करते हो, वहाँ पे बहुत सारा जो नेटिव रिलीजन है वो लुप्त होता गया। क्यों? क्योंकि यू सी अ लॉट ऑफ कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी हैज़ हैपेंड देयर। पर जहाँ पे क्रिश्चियनिटी जब तक नहीं पहुँची,
तब तक वो नेटिव कल्चर्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? वो क्यों? दैट इज द इनहेरेंट ब्यूटी और डाइवर्सिटी ऑफ सनातन धर्म, जहाँ हम कहते हैं एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, कि वो सच्चाई एक है ना, वो सनातन एक है, परंतु उसको पाने के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। और वैसे देखा जाए कि वो देव तत्व जो है वो तो निर्गुण निराकार है, उसको आप अपने अनुसार जिससे आपको शक्ति मिलती है, क्योंकि उसकी भी बहुत अलग अलग शक्तियाँ हैं, उसके भाव और रूप में आप देखते हो। तो केवल ये 3 देवता ऐसे नहीं है, हम कितने सारे जो लोकल ग्राम देवता है उनको मानते हैं, जो लोकल डेटीज, जो ट्राइब्स के डेटीज हैं उनको मानते हैं। हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप वो डेटी को मत नकार दो, ऐसा हम नहीं कहते, हम कहते हैं हम भी उसे इंक्लूड कर लेते हैं हमारे पैंथियन में, राइट? इनफैक्ट इसीलिए इतने सारे वर्ष हिंदू धर्म हैज बीन डोमिनेंट इन भारत फॉर सो लॉन्ग, राइट? In fact, it is all this diverse elements which make Sanatan Dharma, which has preserved the diversity for so long, and I think that is key. जब Abrahamic onslaught होने लगता है, and I'm not even passing a judgment, उसमें कैसा है? The thought is to make it uniform. This is the way. Nothing no else. Way, right? This is the truth. You cannot have your truth. This is the truth. You, even if I tolerate you, it is falsehood, and I have to save you. वो एस्पेक्ट है ना, जिस which does not allow diversity at all. तो आई थिंक अगर हम जियोपॉलिटिक्स के अनुसार देखें तो भी these are elements which one needs to be careful of, especially in a diverse country like India. Coming back to कुंभ, मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ इधर उधर, हर जना अपना अपना लाउड स्पीकर लगा रखा है, हर जने का अपना 1-2 एकड़ का पूरा अपनी दुनिया बना रखी है उन्होंने, और हर कोई यही कह रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। इनफैक्ट आप देखो, इतने सारे हमने जो अखाड़े देखे हैं, है ना, कहाँ वो कुछ कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं बीच में महानिर्वाणी अखाड़ा में एक स्वामी जी थे, उनके साथ बैठी थी, और वैसे महानिर्वाणी अखाड़ा शैव अखाड़ा है, पर उनके जो देवता जो मानते हैं ना वो लोग इष्ट, वो कपिल मुनि को मानते हैं। अब ये जो कपिल मुनि है, वैष्णवों के अनुसार वो विष्णु का रूप है। दर्शन फिलॉसफी में कहते हैं, उसमें कपिल मुनि ने सांख्य का ही प्रोपाउंड किया, ठीक है, जो सांख्य दर्शन है वो। फिर भी एक शैव मठ के वो इष्ट देवता है। ऑफ कोर्स जो वो शैव है वो उसे रुद्र का भी रूप मानते। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि मैंने कहा ऐसे कैसे स्वामी जी कि आप कपिल मुनि को मानते हैं, वो तो सांख्य की बात करते हैं, और भले ही वैष्णव उनको विष्णु का रूप माने, सांख्य में तो पुरुष प्रकृति की बात होती है, डायरेक्ट ईश्वर की तो बात भी नहीं होती। वो नकारते भी नहीं है, पर डायरेक्ट ईश्वर की तो बात भी नहीं होती। जब आप तो शैव हो तो आप कैसे, आप तो पूर्णतः ईश्वरवादी हो। और उन्होंने कहा कि देखो, इवेंचुअली आप ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, ये सब है तो वो ब्रह्म का ही अवतार। हम जिनको मानते हैं वो हमारी मान्यता है, पर है तो एक ही बात, जाना तो सबको वही है। तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ये हम उनको रुद्र रूप मानते हैं, उन्हीं को जो वैष्णव है वो विष्णु रूप मानते हैं, वही सांख्य के भी है, अलग अलग थोड़ी ना है। वो बोलते हैं, उन्होंने लिटरली ये कहा अलग अलग थोड़ी ना है, ये तो मान्यता की बात है, जो आपके भाव की बात है। ये तो वो एक ही सत्य का रूप, और यही आप हर जगह सुनोगे। इसीलिए भले ही वो वैष्णव अखाड़ा हो, ठीक है, वहाँ आपको शिव की पूजा और शिवलिंग मिलेगा जहाँ पूजा हो रही है, भले ही शैव अखाड़ा हो। इनफैक्ट मैं जूना अखाड़ा में जब गई थी तो वहाँ पे राम कथा चल रही थी, और कौन कर रहा था उनके आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी, शैव अखाड़ा के वो हेड है, और वो राम कथा कर रहे हैं। राम तो विष्णु अवतार है ना। इसीलिए यहाँ इतने सारे जो लाउड स्पीकर्स लगे हैं, वो भागवत कथा कहीं भागवत कथा चल रही है, या कहीं शिव कथा चल रही है, कहीं शिव का गान चल रहा है। एक ग्रुप घूमता रहता है यहाँ पे, जिसको जंगम कहा जाता है, और हमको वो मिले ऐसे, आप देखोगे तो वैसे वो जो मोर का पंख होता है वो लगा के घूम रहा है, और शिवजी के ब्याह का गाना वो गाते हैं, और हर एक अखाड़े में, हर एक पंडाल में जाके वो ऋषियों के, ये साधुओं के सामने गा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये शैव है या वैष्णव है या उदासीन है, क्या है, वो जा रहे हैं, और सभी लोग उतना ही मजे से उनको सुन रहे हैं, उनके साथ गा रहे हैं, है ना। तो ये कोई भी लाउड स्पीकर ये नहीं कह रहा कि मेरा ही तरीका सही है, वो कह रहे हैं ईश्वर तत्व ये है, आप ईश्वर को जानो, आपका कोई भी मार्ग क्यों ना हो, आपके लिए ये सारे मार्ग खुले हैं, जो चाहे, या ये सारे मार्ग तो है ही, पर उसके अलावा आप किसी में नहीं बिलोंग करते ना, तो भी ये गंगा मैया सबकी है, डुबकी तो सब लगा सकते हैं।
कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम सही और वो गलत। वो कह रहे हैं हमारा ये मार्ग है, ये एक मार्ग है, आप गलत नहीं हो, हमारा ये मार्ग है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कुंभ। यहाँ पे इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, क्या कोई पूछ रहा है किसकी जाति क्या है, कहाँ से आए हो, स्त्री है वो नहीं कर सकती, कुछ भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई उम्र की बात है, ना कोई जेंडर की बात है, ना कोई जाति की बात है, ना कोई कम्युनिटी की बात है, ना ही कोई नेशनैलिटी की बात है ना। हमने देखा कि कितने सारे फिरंगी और भी लोग आए हुए हैं, किसी को नहीं रोक रहे। और इन सब को आप देखिए, हर एक पंडाल में अन्न दान हो रहा है, भंडारे लग रहे हैं। अभी हम आ रहे थे तब हमने देखा कि कितने कितने तो 100,000 ऋषि जो संत साधु थे वो बैठे थे, और वो ही नहीं, कितने ही जो गरीब थे वो भी बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे हैं ना। कुंभ में कोई भी खाली पेट नहीं सो रहा, और जब खाना दिया जा रहा है तो कोई ये नहीं पूछ रहा कि आप किन को मानते हो, कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई आप उस संप्रदाय से तो नहीं हो तो आपको खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो इनफैक्ट कुंभ इज इन अ वे माइक्रोकॉस्म ऑफ व्हाट सनातन represents, the inherent diversity and beauty of Sanatan. That is what Kumbh represents. बट एक आई डोंट नो आई विल पुट इट इन द वीडियो और नॉट, बट इसमें बहुत सारे तो लाइक एवरीबडी इज नॉट, कुछ तो नकली भी है ना, कुछ देखो, अभी आप जब 40 करोड़ लोगों की बात करते हो, है ना, तो आप ये तो कैसे ही मान सकते हो कि सब लोग एक ही प्रेरणा से आए हैं, है ना। यहाँ पे कुछ जो साधु के रूप में है वो हो सकता है कि एक्चुअली इवॉल्व नहीं है, और वो जो रियलाइजेशन वाली तो बात अलग ही है। बहुत सारे ऐसे होंगे तो क्या, है ना। लोग किस भाव से आ रहे हैं वो देखो, कि कुछ लोग तो केवल टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं, पर इतने सारे लोग इतना चल के आ रहे हैं। आज आपने देखा जो अभी मौनी अमावस्या की जो तैयारी हो रही है, जो बसेस, जो रिक्शाज, गाड़ी सब बंद हो गया है। लोग 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर तक चल के आ रहे हैं। किस भाव से आ रहे हैं? बस गंगा जी में स्नान करने, ये मान कर कि कुछ अच्छा उनके साथ होने वाला है। इट इज़ दैट पॉजिटिविटी विथ विच एवरीबडी इज कमिंग। उस बीच कोई अगर सही, मुझे ऐसे लगता है कि अगर सही इंटेंशन से ना भी आया हो ना, वो जाएगा तो सही इंटेंशन लेकर ही, वो कुछ ना कुछ चित्त शुद्धि से ही जाएगा। और कुछ ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे में तो वैसे ही डाइवर्स लोग हैं। हम कहते हैं ना कि सांख्य के अनुसार, जो मैं कपिल मुनि की बात कर रही थी, तो जो प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस, तमस, है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जो पूर्णतः सत्व हो। ऑफ कोर्स साधु संत होंगे, पर उसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो पूर्णतः रजस हो या कोई पूर्णतः तमस हो। हम सब उस स्पेक्ट्रम में आते हैं। सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, अलग अलग स्पेक्ट्रम वाले तो होंगे ही होंगे। क्या फर्क पड़ता है, भाव तो अच्छा है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। तो एक बात बताओ, अब जैसे यू सेड कि लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, इतनी तकलीफ सह के आ रहे हैं, अभी ये भी जो यहाँ पे खड़े हुए थे, मतलब उनसे सीधा चला भी नहीं जा रहा, फिर भी उनकी लाइफ का एक्साइटमेंट इतना है कि प्लस उनको दिखाना है कि देखो आप गंगा, आप आ नहीं पाए, वो जो जिनकी ये बात कर रहे हैं वो वीडियो कॉल करके अपने परिवारजनों को दिखा रहे थे कि देखो आप नहीं आ पाए, पर ये गंगा मैया है, दर्शन कर लो, संगम के दर्शन कर लो। तो इतना एक्साइटमेंट, इतनी तकलीफ में, ही मस्ट बी 70+, उनसे सीधा भी नहीं चला, फिर भी लोग आ रहे हैं इतनी तकलीफ लेके, चल के 5-5 किलोमीटर दूर, गाड़ियां नहीं अंदर घुस रही हैं। क्या ड्राइव कर रहा है उनको? श्रद्धा, बिलीफ, फेथ जो हम बात करते हैं ना, ये वो श्रद्धा ही तो है कि गंगा मेरी मैया है ना। और उस गंगा में जब मैं स्नान करूँगा तो वो जो देवों का जो अमृत के जो बूंदें यहाँ गिरी हैं, उससे कुछ ना कुछ मेरा भी अच्छा होगा। वो भाव है अपने भगवान के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने नदियों के प्रति, वही तो भाव है। आप यहाँ देख रहे हो, पर यहाँ तो चलो चल के आ रहे हैं। मुझे याद है मैं 4 धाम का सोलो ट्रिप कर रही थी। वहाँ पे मुझे एक अम्मा जी मिले, नहीं तो नहीं, वो 80 साल के थे, ठीक है। ऐसे मुड़ गए थे, लकड़ी लेके चल रहे थे, अपने परिवार के साथ आए थे, पर परिवार वाले आगे निकल गए थे क्योंकि वो केदारनाथ, और केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो बहुत स्टीप है, उसमें वो धीरे धीरे चल रही है। तो आई पास बाय हर एंड आई एम लाइक, अम्मा जी अभी तो आप कैसे पहुंचोगे, ये तो बहुत ही ऊपर चढ़ाई है। तो बोलती है हाँ है। तो मैं कहा अम्मा जी क्या लगता है आप कर पाओगे पूरा? तो बोलती है कितना, 15 घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। भोले बाबा अगर बुलाया है भोले बाबा ने तो वो पहुंचवा ही देंगे, है ना। द थॉट इज कि
द बिलीफ इज कि बुलाया है ना तो अब वो देख लेंगे ना। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद केशव। केशव को कह रहे हैं कि केशव तुम्हारी, मैं आपको वंदन करती हूँ क्योंकि तुम्हारी कृपा कैसी है, तुम्हारा अनुग्रह कैसा है कि आपका अनुग्रह हो तो जो वैसे बोल नहीं पाते ना वो भी बड़े बड़े भाषण वाद विवाद शास्त्रार्थ कर लेंगे, जो चल नहीं पाते वो भी पर्वत क्रॉस कर जाएंगे, है ना। वो अम्मा जी को देख के मुझे इसी की याद आई और उन्होंने मुझे आशा है कि पूरा किया भी होगा। कदाचित वो अपने घर जाके फिर वापस इतना ना चल पाए, बट वो श्रद्धा है। जब आपका संकल्प हो, जब श्रद्धा हो तो क्या नहीं कर सकते आप। यही आपको तीर्थ में और कुंभ में देखने मिलता है। धीरे धीरे कुंभ समझ में आ रहा है। बात बताती हूँ कि कुंभ में इतने सारे जो पंडाल लगे हैं, वहाँ पे जो लोग सेवा करने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है उनको पैसे मिल रहे हैं? जो जिनको गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है वो अलग, ठीक है, कि आप देखो इतना बड़ा ये संगम का स्थल है। अच्छा, आई शुड टेल यू वन मोर थिंग, 80% ऑफ दिस विल सबमर्ज इनटू पानी, है ना। ये सारा ही पानी गंगा मैया जगा दे देती है कि आप मेला करो और वो फिर वापस ले लेती है इसको। सो दिस इज ऑल्सो टेम्पररी। ये भी आप देखते हो कि इवेंचुअली लाइफ मूव्स ऑन, नथिंग इज परमानेंट, सो दिस इज अदर फैक्टर। पर और उन जो सरकार ने नियुक्त किया है, जो यहाँ स्वच्छता रख रहे हैं, वो तो जाने दो, जो सरकारी है। परंतु ये जो पंडाल में जो लोग सेवा दे रहे हैं, है ना, जो खाना परोस रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, ये वो ऑल ऑफ देम आर डूइंग इट फॉर फ्री एज सेवा। लोग अपने अपने प्रोफेशंस, कामकाज छोड़ के आए हैं केवल सेवा देने के लिए यहाँ पर। वॉट मेक्स अस डू दैट? सोचो, पैसा छोड़कर आए हैं, परिवार को छोड़ के आए हैं, ये भी तो श्रद्धा के भाग है ना, कि भाई जो हो सके, जो बन सके। क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि आप स्वयं कुंभ आओ, डुबकी लगाओ, वो तो पुण्य का काम है ही, पर जो आ रहे हैं श्रद्धालु, जो तीर्थ पे आ रहे हैं, मेले में आ रहे हैं, उनको आप कोई ना कोई तरीके से मदद करो ना, तो वो भी पुण्य का काम है। ऑफ कोर्स जो बाकी टेंट्स लगे हैं वो सब तो चलो दे आर पेड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो भी सहूलियत तो दे ही रहे हैं, तो वो भी पुण्य का ही काम है। तो एक बात बताओ, अब पुराणों के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से बात करते हैं। जो हम इनिशियली बोल रहे थे कि यहाँ पे आके डुबकी लगाने से ये मान्यता है कि आपके पाप या कर्म, जो हम कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, दैट आपके कर्म कट जाएंगे, तो आपको जन्म मरण के जो कर्म भोगने पड़ रहे हैं वो कट जाएंगे। सो एज पर द टेक्स्ट, तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और क्या मतलब क्या होता है ऐसा? तो जो पौराणिक की जो बात करी हो ना, पौराणिक कथा, वो तो समुद्र मंथन वाली कथा है कि क्यों यहाँ पर होता है। बट तीर्थ का बेसिकली ये कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं। अब अभी इनफैक्ट परसों ही एक स्वामी जी से मेरी बात हो रही थी। और क्या आप ये मानते हो? हाँ, तो इसी विषय में परसों एक स्वामी जी से मेरी बात हो रही थी कि मैंने कहा स्वामी जी कहते हैं पाप धुल जाते हैं, पर ऐसे तो कैसे ना, फिर पाप अगर धुल जाए तो फिर कोई पाप करे, डुबकी लगा दे, हो गया। वो बोले ऐसा होता है? वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो कर्म सिद्धांत में मानते हैं ना। हमारा जो समाज है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें कर्म सिद्धांत बहुत ही मायने रखता है। कर्म सिद्धांत मतलब क्या, कि आप जो भी करोगे उसका कर्म फल तो आपको मिलना ही मिलना है। स्पेशली जो कार्य आपने स्वयं इच्छा से किया है, स्वयं के डिज़ायर से किया है, उसका फल तो मिलना ही है। क्या फल मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो केवल डुबकी लगाने से वो नहीं कटता, परंतु जब आप ऐसी स्थान पे आते हो, इतने पॉजिटिविटी में आते हो, और मैंने जो कहा कि पहले तो लोग तप करने के लिए, साधना करने के लिए आते थे, है ना, तो पहले के पाप धुल जाते, ऐसा नहीं है, पर आप वापस जाकर तो ज़्यादा अच्छे मनुष्य बनते हो, तो आगे और पाप या आगे ऐसे कर्म नहीं करते जिसका बुरा परिणाम आपको और आपके समाज पर हो। तो जो मैं मानती हूँ कि पाप धुले ना धुले ये मैं नहीं चाहती, पर चित्त शुद्धि तो अवश्य होती है। अभी आज तो अलग बात है, हम टूरिस्टी तौर पे आते हैं, टूरिस्ट की तरह एक डुबकी लगा के चले जाते हैं, उससे तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। परंतु जो कल्पवास के लिए आते हैं, कल्पवास अगेन जो मेला, कुंभ मेला होता है, उसमें कल्पवास का बहुत महत्व है, जिसमें क्या होता है कि आप या तो 40 दिनों के लिए या कुंभ के दौरान आपकी इच्छा अनुसार हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप संकल्प लेते हो कि आप 3 बार गंगा जी में स्नान करोगे या डुबकी लगाओगे, एक ही बार खाना खाओगे, एकदम सादा खाना, खिचड़ी या कुछ स्वयं बनाया हुआ, बेड पे, गद्दे पे नहीं लेटोगे, ज़मीन पे लेटोगे, और पूरा जो बाकी का समय है वो आपका जप, साधना, प्राणायाम, जो भी आप कहो, और सत्संग,
इसमें आप व्यतीत करो। अब आप जब कुछ दिन भी ये करोगे, उसका यू कैन इमेजिन राइट, इट इज़ वेरी साइंटिफिक, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रीवायर योर सिस्टम। जो मैं आपको पहले बता रही थी कि तीर्थ का महत्व, कि it leads to a reprioritization of life and what matters in life. How does that happen? Because it changes your perspective towards life, right? You realize what matters and what doesn't. It makes you a lot more content, calmer, objective in life. Because वो जो अरे मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा, उस सबसे आप दूर जा रहे हो. You are becoming lot more inward focused. The realization कि भाई ये तो सब temporary है, मैं किसके पीछे भाग रही हूँ. होता कैसा है ना, हमारा जो नॉर्मल संसार चलते रहता है उसमें वी आर सो बॉग्ड डाउन बाय एवरीडे इश्यूज कि हमको उसके बियॉन्ड सोचने का समय ही नहीं मिलता. एंड हमें लगता है कि सुख दुख ये तो यही है, मेरे अनुसार कुछ हो गया तो सुख हो गया, पर वो सुख क्षणिक है क्योंकि वो रहता तो नहीं है ना. फिर कुछ हो गया तो फिर दुख हो गया, तो वो सुख दुख में हम चलते ही रहते हैं. एंड इवेंचुअली पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, राइट. ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वी जस्ट डोंट थिंक बियॉन्ड दिस क्षणिक सुख दुख. सच ओकेजन्स allow us to reflect back and say, अरे मैं क्या, is this what it is or is there something more to it? Is there a larger goal? Is there a larger purpose to this life? That is what Tirtha Yatras and such occasions make you think, especially if you put in that kind of effort. तो ये चित्त शुद्धि इससे होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं. तो बेसिकली हम कहते हैं ना कि हाउ डू यू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. दिस इज वन वे टू मेक इट अट्रैक्टिव. सो हम बात कर रहे हैं इसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की, राइट. ऐसा एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेला लाइक दिस, इसका फ्यूचर जनरेशंस पे स्पिरिचुअल और रिलीजियस लेवल पे क्या, व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट? बिकॉज ये जो कुंभ हो रहा है इसमें एस्टिमेशन है कि 40 करोड़ लोग आएंगे. ठीक है, 40 करोड़ मतलब आप समझ रहे हो कि यूएस के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाएंगे. तो इट्स लाइक अ मिनी कंट्री इन इट्स ओन. अवधेश आनंद गिरी जी ने, स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये दिस इज अ कंट्री ऑफ इट्स ओन, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री. इसके पहले इतने नहीं आए थे, इसके पहले उतने नहीं आए थे. तो हर वर्ष वो बढ़ते जा रहा है. ठीक है, लोगों में जागरूकता बढ़ते जा रही है, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही है. एंड मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस, वो जो पिछले 500-600 वर्ष इंडिपेंडेंस के पहले के भारत के रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ दीज एक्सटर्नल ऑनस्लॉट, इस्लामिक ऑनस्लॉट, उसके बाद ये जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन वगैरह, हम लोग सोसाइटी के तौर पे बहुत स्टैग्नेंट हो गए थे. ऑल दोज अटैक्स हैड अ वेरी ह्यूज डैमेजिंग इम्पैक्ट on the social fabric and the Hindu mind. धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के बाद जैसे हमारा आर्थिक स्तर बढ़ते जा रहा है, एज लाइफस्टाइल बेटर हो रही है, वंस अगेन दैट स्पिरिचुअलिटी, वो जो आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी वापस मुझे लगता है कि बढ़ते जा रही है. वो सर्च वापस बढ़ते जा रहा है और वो इस भूमि में हमेशा रहेगा, हमेशा से रहा है ना. जब और कोई सिविलाइजेशन था भी नहीं, तब हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो यहाँ ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसकी रचना चल रही थी, नाट्यों की रचना चल रही थी, इतिहास पुराण की रचना चल रही थी, युद्ध हो रहे थे, राइट. और इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, प्रॉस्परस सिविलाइजेशन रादर. कंट्री भी मुझे नहीं कहना चाहिए, बट दैट प्रॉस्पेरिटी वाज नॉट डिवॉइड ऑफ आध्यात्मिकता, बिकॉज आध्यात्मिकता रिक्वायर्स अ फुल स्टमक. ठीक है, ओनली व्हेन यू आर प्रॉस्परस विल यू थिंक अबाउट अदर थिंग्स. नहीं तो आप रोज खाने पीने के आपके वांधे हैं तो आप क्या आध्यात्मिकता सोचोगे, राइट. एंड द क्लाइमेट हियर हैज बीन कंड्यूसिव टू दैट. बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, एक्सट्रीम नहीं है, राइट. सो एवरीडे स्ट्रगल्स कम है. सो यू थिंक बियॉन्ड द इमीडिएट, स्पेशली व्हेन द इमीडिएट नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, रोटी कपड़ा मकान आर टेकन केयर ऑफ. सो वी हैव ऑलवेज बीन दैट भूमि, हम ऋषियों की भूमि रहे हैं. तो यहाँ से आध्यात्मिकता कभी जा तो सकती नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है. और मुझे ये लगता है कि वो बढ़ती ही रहेगी और वो बढ़ते रहेगी. साथ साथ उसी अनुसार कुंभ का इम्पोर्टेंस भी बढ़ते रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहेंगे. एंड आई एम श्योर, आप देखो अभी जो मौनी अमावस्या का स्नान है 29 को, तो मैं आपको बता रही थी कि कल ही मैंने देखा कि कुछ कितने सारे जो यंग ओल्ड लोग थे वो नागा साधु में इनिशिएट होना चाह रहे थे. कितने सारे, पिछले 25 वर्षों में अवधेश आनंद गिरी जी ने अकेले ने जूना अखाड़ा में 10 से 12 नागा साधुओं का इनिशिएशन किया है.
ठीक है, तो आज भी लोगों में वो डिजायर है, वो कामना है कि वो इस मार्ग पर भी जाए। मैं ये नहीं कह रही कि सबको सन्यासी हो जाना चाहिए, है ना, पर आज तो अखाड़ों के साथ साथ और भी संप्रदाय हैं और भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बियॉन्ड संप्रदाय भी आध्यात्मिकता में रूट करने का बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कोई और करे ना करे, व्हाट इज आध्यात्मिकता एट द एंड ऑफ द डे, राइट? फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, व्हाट इज आध्यात्मिकता एंड व्हाई डू यू नीड इट? फॉर आवर लास्टिंग हैप्पीनेस। मिलना नहीं मिलना, ठीक है, हमको लगता है मुझे, मैं जो चाहती हूँ वो हो गया तो मेरे लिए अच्छा, मैं चाहती हूँ वो नहीं हुआ वो मेरे लिए बुरा। इज दैट रियली ट्रू? बिकॉज मुझे जो आज अच्छा लग रहा है आगे चल के वही बुरा परिणाम दे सकते हैं। जो मुझे आज बुरा लग रहा है वो आगे चल के अच्छा परिणाम दे सकते हैं। वेरी सिंपल। मुझे आज मैं एक चुस्का सिगरेट का मार लूँ, बहुत अच्छा लगेगा, उस क्षण के लिए मुझे खुशी मिल गई, बट इज दैट हैप्पीनेस रियली? आइडियली अगर मैं वो क्रेविंग को होल्ड ऑन करूँ, इफ आई डोंट गिव इन टू इट, थोड़ी देर मुझे सुख होगा, बट दैट इज लॉन्गर रन में मेरे लिए अच्छा, राइट? सिमिलरली मुझे करेला पसंद नहीं है, कुछ टाइम के लिए मुझे वो बुरा लग रहा है, तो उस दुख को अवॉइड करने के लिए मैं वो नहीं खाती। उस क्षणिक दुख तो मुझे नहीं मिलता, पर जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट है वो भी नहीं मिलते, है ना? सो व्हाट इज इट दैट यू आर आफ्टर? टू गेट दैट पर्सपेक्टिव कि भाई व्हाट मैटर्स इन लाइफ, इज इट जस्ट द मटीरियल प्लेजर और लास्टिंग हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स? बिकॉज व्हाट डज एवरीबडी वांट यार? हम ये पैसे के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, आई एम सेइंग वी ऑल नीड दैट, राइट? बट बियॉन्ड द पॉइंट हम क्यों भाग रहे हैं? नाम के पीछे, फेम के पीछे, क्यों? बिकॉज इट गिव्स अस हैप्पीनेस। वी आर ऑल सीकिंग हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे। और अदर एज सांख्य वुड से, सांख्य सेज इट्स नॉट इवन दैट यू आर सीकिंग हैप्पीनेस, यू आर सीकिंग टू गो अवे फ्रॉम दुख। आप दुख से दूर जाना चाहते हो, दुख दर्द से दूर जाना चाहते हो। दैट इज द जर्नी, और रादर दैट इज द स्ट्रगल फॉर ऑल ऑफ अस। वो कैसे होगा? केवल पैसों से? अगर ऐसे होता तो सभी लोग जो पैसे वाले हैं वो सुखी होते, ऐसा नहीं है, है ना? केवल फेम से? वो भी नहीं है। केवल पावर से? वो भी नहीं है। और जिनके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भी सुखी नहीं है। तो व्हाट इज दैट एल्यूसिव सुख, राइट? हाउ डू यू गेट अवे फ्रॉम दैट दुख? विदाउट द राइट काइंड ऑफ ग्राउंडिंग एंड परसेप्शन, जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, एंड व्हाट इज इट दैट यू शुड रियली डिजायर फॉर, तब तक वो सुख नहीं मिलेगा। तब तक ये क्षणिक सुख और दुख में ही अटके रहेंगे। वही आध्यात्मिकता है ना? और मुझे लगता है जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है भारत में, तो वो बढ़ते ही जाए। आई एग्री विद यू। आई थिंक whatever you said, you put it beautifully. मेरा भी मानना यही है that this is the time where things are in fact getting more. The realization has started coming. लोगों को थोड़ी सी curiosity बढ़ रही है। पहले तो कोई बात भी नहीं करता था। आज से 20 साल पहले तो कोई डिस्कशन नहीं होता था कि क्या स्पिरिचुअलिटी, क्या ये वो, जो घर में बस पूजा होती आ रही है वैसे के वैसे कर लो। पर आप देखो ना, देखो अगर आपकी और मेरी ही आप जर्नी देखें तो वी बोथ वर्कड। हमने 10-15 साल जो भी काम किया, पैसे बनाए, है ना? और अब हम कॉर्पोरेट छोड़ के ये कर रहे हैं। बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज वी कैन अफोर्ड इट। हमारे माँ बाप शायद वो नहीं कर पाते, अगर वो कर देते तो आज हम लोग ये नहीं कर रहे होते, राइट? तो वही मैं कह रही हूँ कि ये सब ना वो इकोनॉमिक साइकिल के साथ भी लेना देना है, गिवन दैट वी आर ऑन द चढ़ती। अच्छा, द थिंग इज, हमने हमारी श्रद्धा तो बुरे समय भी नहीं छोड़ी, है ना? हमने तभी भी वो पकड़ के रखी, इसीलिए आज वो है। वी हैव अ ग्राउंडिंग टू बिल्ड ऑन। वी नो दैट देयर इज अ मार्ग। भले ही हमारे पहले जनरेशन को इतना समय नहीं मिला, तो आई वुड से दे डिड व्हाट दे कुड डू, that has allowed us a base to now do what we do. So to wrap up the conversation, एक लास्ट सवाल। कुंभ में कोई भी आ रहा है, उसको 1, 2 या 3 चीजें, whatever number of things, कि ये तो करना ही चाहिए अगर कोई भी कुंभ आ रहा है, तो वो क्या है? डुबकी तो लगानी ही चाहिए। और मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी बहुत लोग आ रहे हैं, देखने आते हैं, स्पेशली जो मुंबई दिल्ली से पानी बहुत ठंडा है, याद रखना। पर फिर भी जो मुंबई दिल्ली से, उनको लगता है अरे ये गंदा है, इतने लोग ले रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या ही हो जाएगा। आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अगर आप यहाँ तक आए हो और आप डुबकी नहीं लगा रहे, तो आपके जितना दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं है। वो जस्ट लेट योर सेल्फ लूज, कीप एन ओपन माइंड, खुला मन रखिए, खुला दिमाग रखिए, एब्जॉर्ब दिस एक्सपीरियंस एंड एब्जॉर्ब दैट एक्सपीरियंस ऑफ द गंगा स्नान, द संगम स्नान,
वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता, वो शब्द उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि वो डुबकी लगाने के बाद, स्नान के बाद जो अनुभव होता है ना, वो केवल अनुभव किए बनता है। तो वो अवश्य करिएगा, घूमिएगा, बात करिएगा लोगों से। आप जब साधुओं को देखो तो बहुत सारे लोग यहाँ नागा साधुओं को देखने आते हैं और वो लोग वहाँ है, वो बैठे हैं वहाँ पर ताकि हम उनको देखें, परंतु ना तभी भी खुले मन से जाइएगा। वो आज जो कर पा रहे हैं वो उनकी सिद्धि है, वो बनने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की है, तभी जाके इतनी ठंड में भी वो लोग जो है वो है। उनको एक कार्टून की तरह या अरे चलो सिर्फ फोटोग्राफ खिंचा लिया, मस्ती कर ली, उस भाव से मत देखिएगा। उनको भी आदर भाव से देखिएगा और उनको उसी भाव से अप्रोच करेगा। अब उस तरीके से जब आप अप्रोच करोगे ना, यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड दिस एक्सपीरियंस विल बी वर्थ इट। थर्ड, यहाँ पे जगह जगह पे प्रसाद बट रहा है, भंडारा लग रहा है, कभी कहीं खिचड़ी है, कहीं हलवा है, कहीं पूरी सब्जी है, डिलीशियस। ट्रस्ट मी वो इतना अच्छा है कि पूछो मत। वो भी अवश्य लीजिएगा, वो भंडारे का खाना, वो प्रसाद का खाना जो फ्री में बट रहा है, उसका भी डेफिनेटली लुत्फ उठाइएगा। यहाँ पे आओगे तो खाना कहीं ना कहीं जाने की जरूरत है ना कुछ है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इज ऑन द हाउस इन महाकुंभ। प्रयाग में है, कुंभ पे है। इट इज लाइक एक्चुअली अमेजिंग द अमाउंट ऑफ फूड इज अवेलेबल एवरी नुक, हर गली में 2-3 भंडारे लगे हुए हैं और सबका अलग अलग खाना है। ऑसम, लाइक आई थिंक दिस हैज बीन एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। मेरे खुद के बहुत सारे थॉट्स कुंभ के बारे में खुल गए, जो मैं 2-3 दिन से कंफ्यूज था कि कहाँ आ गया हूँ मैं, कहाँ मैं कैसे उसको नैरो डाउन करूँ। सो अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन एट अ मच मोर ब्यूटिफुल प्लेस, कांट बी परफेक्ट देन दिस। हम लिटरली संगम पर हैं। Absolutely. So thank you once again. Beautiful conversation. And अगर आप कुंभ आ रहे हो तो remember what 3 things she said. And let me know if you are coming. What do you think of the conversation? Anything you want to put in the comments or ask. I'll see you in my next story. खुशियाँ always. जय सिया राम। जय सिया राम, महादेव।